Hello everyone. আজি আমাৰ ভিডিও নম্বৰ 1 date 24/12/2025 class 7. So মই নেকি তোমালোকক ভিডিওৰ দ্বাৰা কিছুমান মেথছৰ নলেজ দিব বিচাৰো। সেয়ে মই আজিৰ পৰা ভিডিও ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছো। So আজি চেপ্টাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম চেপ্টাৰ 10 So here we have triangle and its properties. Triangle আৰু ইয়াৰ কিছুমান ধৰ্ম আছে তাৰে কথা আমি ডিসকাস কৰিম। First of all, you understand type of triangle. Types of triangle. Triangles. So you already know, but why I think have you तुम्हारा नाज़ा है तो type of triangle जिन्हें scalene triangle second one is isosceles triangle. Third one is equilateral triangle. और भी राइट एंगल ट्रायंगल भी है वो ना जिसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल this triangle all sides are different. Suppose this side has 3 centimeter, this side 4 centimeter, and this is 10 centimeter. All sides value will be different. That means this type of triangle is called scalene triangle. Another one is isosceles triangle. Isosceles triangle this is a triangle. This side and this side will be same, and this third side not the same. This side has suppose 3 centimeter. This will be 3 centimeter, but this side we assume 5 centimeter. Like ये दोनों equal है और ये दोनों ये last side equal नहीं है. That type of triangle is called isosceles triangle. Similarly, equilateral triangle. Suppose this is a triangle and all sides are same value. Suppose this side has 4 centimeter. This also 4 centimeter. This also 4 centimeter. All sides will be same. Then it is called equilateral triangle. Understand? And another triangle is right angle triangle. Right angle triangle. What is right angle triangle? This is a triangle and this symbol is right hand. This symbol means 90 degree. This symbol is 90 degree. कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो that type of triangle is called right angle triangle. Understand everyone? So तुम लोग एक कॉपी में लिख लेना, डिवाइस करने में आसानी होगा। मैं भी लिख देता हूँ। अगर कोई एक क्वेश्चन आएगा तो क्लासिफाई द
triangles according their angles, which already given here. This is one number, suppose 45 degree, 59 degree, 76 degree. Three sides orbit triangle जैसे obtuse angle triangle, right angle triangle लिखा मैंने, ऐसा obtuse angle triangle में तुम लोग को पहले ही वो सब मिल गया था, क्लास 6 में ही मिल गया था. फिर acute angle triangle, reflex angle triangle, ऐसा भी है. अगर तीनों एंगल डिफरेंट होगा तो क्या होगा? तीनों एंगल अगर डिफरेंट होगा तो acute angle triangle. अगर ऐसा सपोज है डिग्री, कोई भी एंगल, ट्रायंगल में तो तीन एंगल होता है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो कौन सा होगा? लास्ट में लिखा था मैंने, एक देखो, एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों डिफरेंट है. दैट मींस एक एंगल 90 डिग्री है, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. अंडरस्टैंड? ऐसा भी होता है, इस सूत्र में ही है सर, इसलिए मैंने दिया. अभी हम लोग करने वाले हैं unknown angle triangles. Find the value of x. x का वैल्यू निकालना है. We need to find the value of x. Suppose एक triangle दिया है ऐसे, this is 2x, this is x and this is suppose 30 degree. x का वैल्यू निकालना है और बोलना है किस टाइप का ट्रायंगल है. तो बाद में हम पहले x का वैल्यू कैसे निकाल के देखो. ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, तीनों एंगल को अगर प्लस ऐसे कर दिया तो आंसर आएगा 180. टोटल इंटीरियर एंगल्स, टोटल एंगल विल बी 180. हाँ, ये होना ही चाहिए, तीनों एंगल को प्लस करने में करोगे तो. इधर देखो, पहले तो तीनों को प्लस करता हो. इधर जो भी है x लिखो, देन सेकंड एंगल इज 2x, थर्ड वन इज 30 दिया है ऑलरेडी. तो तीनों को प्लस करने में कितना आएगा? 180. सो नाउ लेफ्ट साइड में देखो, x इधर है, x इधर है, दोनों लाइक टर्म है. अगर लाइक टर्म होगा तो दोनों को प्लस करो, कितना होगा? 2 एंड दिस इज 1, 2 plus 1 3 and x 3x plus 30 equal to 180. ऐसा तो तुम लोगों को मालूम है अलजेब्रा. अभी देखो 3x लिख दिया, x और इस यहाँ पर तो x नहीं है, दोनों अनलाइक टर्म है, तो इसलिए 30 को इधर लेके आओ. इक्वल 180 ऑलरेडी इधर था, जो पहले था वो लिखो पहले, फिर 30 को इधर लेके जाओ, माइनस 30, फिर 3x इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना होगा? 150. फिर इधर x लिखो, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x इक्वल टू 3 कहाँ जाएगा? 3 वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो नीचे आएगा और इधर जो है ऊपर जाएगा. तो 3 से 150 को डिवाइड करो, अगर डिवाइड कर सकते हो इधर करो, अगर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो तो करो, जैसा इजी होता है वैसा करो. मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ. 3 5 जा 15, आंसर 0 आएगा. 0 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, 50 होगा. दैट मींस इसका तो कैंसिल हो गया तो 50 आएगा. दैट मींस x इक्वल टू 50, मतलब x का वैल्यू कितना आया? 50 आया. सो ये मैं पोज देता हूँ इधर, पोज देता हूँ, ऊपर लेता हूँ, बाकी ऊपर लेता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा.
देखो x इक्वल टू 50 हो गया ना, तो एक एंगल कितना आया 50 आया। इस सेकंड एंगल कितना होगा 2x है, तो 2x इक्वल टू 2 into 2 और x कितना क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x वैल्यू इज 50, तो आंसर विल बी 5 2 10 और 0 पहले था तो 100 डिग्री। इसका वैल्यू 100 और इस x का वैल्यू कितना होगा 50 और ऑलरेडी एक था 30, तो तीनों एंगल का वैल्यू आ गया। और तीनों वैल्यू देखो 90 से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं है। और x का वैल्यू भी निकलना है, x का वैल्यू 50 था, दो तीन दोनों में बैठा दिया तो दोनों का एंगल आ गया, इसका 50 इसका 100 और 30। कि अगर तीनों को प्लस करोगे तो 180 ही आएगा। 100 प्लस 50 150 प्लस 30 180। अंडरस्टैंड? तो ऐसे तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो। अगेन देखो, अगर ऐसा है तो 90 और इधर x इधर x, तुम x का वैल्यू निकालना है जरा, तो होमवर्क एरिया में है कुछ करना। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, मैं 2 नंबर कर देता हूं, बाकी सब करने करना खुद करना। दिस इज सिंबल इज ऑलरेडी गिवन हियर, वैल्यू नहीं दिया है, x दिस इज 2x। तो क्या करोगे तीनों को प्लस करोगे, x का वैल्यू निकालना है तो x plus 2x plus this variable is called 90 डिग्री। तो तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो तीनों को प्लस करो तो इधर तो x दोनों में x है, तो दैट मींस दिस टर्म इज राइट टर्म 2x plus x कितना होगा 3x plus 90 इक्वल टू 180। अभी जो किया था वैसे ही है, 3x और 90 को इधर लेके आओ, 180 minus 90 3x इक्वल टू 180 minus 90 कितना होगा 90 होगा। तो इधर x लिखो और साइड में जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है कहां जाएगा नीचे और ऊपर 90, 3 से 90 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9 0 30 होगा। तो x इक्वल टू 30, दैट मींस x का वैल्यू कितना होगा 30 होगा, वही निकालना है। हो गया। अगर एंगल का वैल्यू निकालना है तो इधर भी बैठना होगा 2x 2 into 30 कितना होगा 60 होगा, इसका 30 होगा, ऐसे 90 होगा, तीनों को प्लस करोगे तो 180 हो गया ना। तो ऐसे करना है, बाकी सब करने करना खुद करना। अंडरस्टैंड? तो यही था आज इस क्लास में। थैंक यू।